Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Dr. Namra and today we will discuss guidance and counseling. What is guidance and counseling? Let's start with introduction. Guidance and counseling are joint concepts and have emerged as essential elements of every educational activity. Guidance and counseling are not synonyms. Term counseling is a part of guidance. Guidance is in educational context means to indicate, point out, show the way, lead out and direct. Counseling is a specialized service of guidance. It is the process of helping individuals learn more about themselves, their present, possible future situations to make sustainable कंट्रीब्यूशन ऑफ द सोसाइटी. ठीक है, कहते हैं कि गाइडेंस एंड काउंसलिंग जो है वो दोनों एक दूसरे का सिनोनिम नहीं है, बल्कि ये अलग अलग जो इनके कॉन्सेप्ट्स हैं. काउंसलिंग जो है वो गाइडेंस का ही एक पार्ट है. गाइडेंस क्या होता है? किसी की रहनुमाई करना, किसी एजुकेशनल पर्पज़ के लिए या किसी डायरेक्शन में, या किसी आप उसको वे आउट दिखाते हो या किसी डायरेक्शन बताते हो या किसी चीज़ में रहनुमाई करते हो, वो गाइडेंस कहलाता है. काउंसलिंग जो है वो स्पेशलाइज सर्विस होती है और उसका ही सबसेट होता है गाइडेंस का. और ये प्रोसेस करता है, क्या हेल्प करता है इंडिविजुअल्स को कि आप मज़ीद किसी की चीज़ के बारे में बॉर्डर एक्सपेक्ट रखें, मज़ीद किसी चीज़ के बारे में जानें. ठीक है, आप उसकी प्रेजेंट पॉसिबल और फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस को, सिचुएशंस को अंडरस्टैंड करने की सलाहियत रखते हैं इसके थ्रू. डेफिनेशन की हम बात करें गाइडेंस की, तो गाइडेंस इज़ एन असिस्टेंस मेड अवेलेबिलिटी बाय अ कॉम्पिटेंट काउंसलर टू एन इंडिविजुअल ऑफ एनी एज ऑफ टू हेल्प हिम डायरेक्ट हिज ओन लाइफ, develop his own point of view, make his own decision and carry his own burden. ठीक है, इसके अलावा गाइडेंस इज द प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग एवरी इंडिविजुअल थ्रू हिज ओन एफर्ट टू डिस्कवर एंड डेवलप हिज पोटेंशियलिटीज़ फॉर हिज पर्सनल हैप्पीनेस एंड सोशल यूजफुलनेस. काउंसलिंग की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो काउंसलिंग इज एसेंशली अ प्रोसेस इन विच द काउंसलर असिस्ट द कंसील टू मेक इंटरप्रिटेशंस ऑफ फैक्ट्स relating to a choice, plan or adjustment which he needs to make. Counseling is a series of direct contacts with the individual which aims to offer him assistance in changing his attitude and behaviors. What is the difference between counseling and guidance? Guidance is a broader, comprehensive, while counseling is an in-depth, narrow. Guidance is more external, help a person to understand alternative solutions available to him and makes him understand his personality, choose the right solution. And counseling helps people understand themselves in an inward analysis. Alternative solutions are proposed to help understand the problem at hand. Guidance is mainly preventive and developmental. Counseling is remedial as well as preventive and developmental. Guidance to intellectual attitudes are the raw material of guidance. Counseling emotional rather than pure intellectual attitude are raw material of the following counseling process. Decision making is operable at an intellectual level in guidance, while in counseling operates at an emotional level. Guidance is generally education and career related and may also be for personal problems, and counseling is mostly offered for personal and social issues. ठीक है, ये इनके मेन डिफरेंसेस है दोनों के. पर्पज़ की अगर हम बात करें तो providing the needed information and assistance, helping the individuals to make wise choices, improve the understanding of self, facilitate the adjustment, helping in adapting to change or new environment, मेकिंग सेल्फ सफिशिएंट एंड इंडिपेंडेंट. ठीक है, ये इसका बेसिक पर्पस है गाइडेंस एंड काउंसलिंग का, कि आपको इंडिपेंडेंट बनाना, आपको किसी इन्वायरमेंट एडजस्ट करना, किसी चीज़ के बारे में नो हो प्रोवाइड करना, आपको हेल्प करना, रहनुमाई करना और बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना. पर्पज़ ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग में मज़ीद आ जाता है. फर्दर हम बात करें तो एफिशिएंट यूज़ ऑफ कैपेबिलिटीज़ एंड टैलेंट, प्रमोट ऑप्टिमल पर्सनल प्रोफेशनल डेवलपमेंट, बैलेंस फिजिकल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल, सोशल एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ, हेल्प्स इन ओवरऑल डेवलपमेंट टू लिव प्रोडक्टिव लाइफ. ठीक है, ये आपकी फिजिकल, जितना आपकी होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करें, बैलेंस यानी फिजिकल, इमोशनल, डेवलपमेंटल, साइकोलॉजिकल ग्रोथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ की बात करते हैं. उसके अलावा ये ओवरऑल आपकी होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं और फिर पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को ग्रो अप करते हैं. अदर फंक्शंस की अगर हम बात करें तो प्रोवाइड ऑप्टिमम डेवलपमेंट एंड वेलबींग फॉर इंडिविजुअल्स, टू हेल्प इंडिविजुअल्स एडजस्ट टू देमसेल्व्स एंड द सोसाइटी, टू हेल्प पीपल अंडरस्टैंड देमसेल्व्स इन रिलेशन टू द वर्ल्ड, to aid individuals in efficient decision making, to help individuals plan for a productive life in their social context by focusing on their
assets, skills, strengths and possibilities for future development. To bring अबाउट चेंज द एटीट्यूड एंड बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, किसी के आप बिहेवियर को मॉडिफिकेशन करना चाह रहे हैं, किसी की प्रोफेशनल डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं, किसी को इन्वायरमेंट में सोसाइटी में एडजस्ट करना चाह रहे हैं, या किसी के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं, या आपको उसको रिलेशनशिप को समझाना चाह रहे हैं आप, यानी लोगों के साथ या वर्ल्ड के साथ इंटरेक्टिव सोशल आप इंटरेक्शन क्या है, या सही फैसला करने की कुव्वत फैसला करने की सलाहियत जो है वो आप देना चाह रहे हैं, आप प्लान फॉर एक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, ये डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ और फ्यूचर प्लानिंग को आप देखते हैं, तो फिर आप इसको गाइड करते हैं, या काउंसलिंग को आपको उसकी ज़रूरत पड़ती है. Characteristics of guidance: it is a process, it is a continuous process. Choice and problems points are the distinctive concerns of guidance. It is the assistance to the individual in the process of development rather than the direction of that development. Guidance is a service meant for all. गाइडेंस इज़ बोथ जनरलाइज एंड स्पेशलाइज सर्विस, ठीक है, यानी वो कह रहे हैं कि गाइडेंस से ब्रॉडर और नैरो दोनों कॉन्सेप्ट आते हैं, यानी स्पेशलाइजेशन क्या होता है, किसी चीज़ में आप उसकी ज़्यादा इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन हासिल करते हो, ठीक है, तो आपकी चॉइस भी हो सकती है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग का सोल्यूशन से प्रोवाइड कर सकते हैं इंडिविजुअल्स को, वो उसकी पर्सनल डेवलपमेंट भी हो सकती है, और ये एक प्रोसेस भी है. गाइडेंस इज़ एन ऑर्गेनाइज सर्विस एंड नॉट एन incidental activity at the school. Guidance is not a branch of any discipline. Guidance has limits. Guidance is more as art than science. Guidance base its roots in the education system. Guidance is centered around the needs and aspiration of students, ठीक है, आप स्टूडेंट्स के नीड के अकॉर्डिंग एजुकेशन सिस्टम में भी आप उनको एज अ टीचर आप उनको गाइड कर सकते हैं. इसके अलावा अगर हम काउंसलिंग की करैक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो काउंसलिंग इन्वॉल्व्स टू इंडिविजुअल्स, वन सीकिंग हेल्प एंड द अदर a professional trained person who can help the first. Therefore should be a relationship of mutual respect between the two individuals. Counseling is aimed at bringing about desired change in the individual for self realization, providing assistance to solve problem through an intimate personal relationship. The counselor discovers the problems of the counsels and help him टू सेटअप रियलिस्टिक गोल्स, ठीक है, तो काउंसलिंग का जो रोल है उसमें वो ये कहते हैं कि आपको रियलिस्टिक गोल्स की तरफ वो गाइड करते हैं, आपको रिलेशनशिप के बारे में बताते हैं. इसके अलावा कहते हैं हम काउंसलिंग के हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें. काउंसिल इज़ अ स्टूडेंट, काउंसलिंग हिम helps him to take a decision, make a choice or find a direction in matter related to an education program or career. It helps the counsel acquire independence and develop a sense of responsibility. It is more than advising, giving. It involves something more than offering an assistance to find a solution to an immediate problems. Counseling is democratic. Counseling concerns itself with attitude as well as action. Counseling is centered around the needs and aspirations of students, ठीक है, कि बच्चों की नीड्स के अकॉर्डिंग आप उनको गाइड करते हैं, और जहाँ पर उनको ज़रूरत पेश आती है और आप उनको एडवाइस करते हैं, और उससे ज़्यादा बेहतर है कि किसी की काउंसलिंग करें ताकि उनको इंडिपेंडेंट और आप उनको सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप कर सकें, उनको इंडिपेंडेंसी प्रोवाइड कर सकें, ठीक है, उनको अपने प्रोइंस कौन का पता हो, ठीक है. स्कोप ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग में क्या आता है? गाइडेंस एंड काउंसलिंग फॉर पर्सनल नीड्स हो सकता है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग फॉर एजुकेशनल नीड्स हो सकते हैं, और फिजिकल, इमोशनल, सोशल, मॉरल एंड मेरिटल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. गाइडेंस एंड काउंसलिंग फॉर वोकेशनल, ऑक्यूपेशनल एंड प्रोफेशनल नीड्स हो सकती हैं. गाइडेंस एंड काउंसलिंग फॉर करियर एडवांसमेंट हो सकती है. गाइडेंस एंड काउंसलिंग फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सकती है. गाइडेंस एंड काउंसलिंग फॉर सिचुएशनल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. नीड्स ऑफ इंडिविजुअल गाइडेंस एंड काउंसलिंग. नीड्स फॉर पर्सनल एंड सोशल डोमेन की अगर हम बात करें, पर्सनल सोशल डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल टू अडेप्ट इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, ऑफरिंग आर्ट ऑफ बेटर लिविंग, प्रॉपर यूज़ ऑफ layer time, holistic personality development, best use of available opportunities, motivates for effective utilization and development of self, ठीक है. इसमें आप क्या क्या एस्पेक्ट दे सकते हैं? पर्सनल ग्रूमिंग को देख सकते हैं, आप बेटर लिविंग स्टाइल को देख सकते हैं, आप अपने टाइम को कैसे अपने सही तरह से मैनेज करना है, होलिस्टिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट है या मोटिवेशन है. इसके फर्दर हम नीड की बात करते हैं तो हेल्प्स इन एकेडमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हेल्प इन वोकेशनल प्रोफेशनल मैच्योरिटी, फैसिलिटेट एन इंडिविजुअल इन द राइट एजुकेशन प्रोफेशन. Other help to handle educational professional situations, helps in the proper utilization of human resources, helps in adapting to the changing concept of education, prepare to adapt in changing professional situations and emerging challenges, helps in making proper career choice, helps to minimize indiscipline, ठीक है.
कि आप अपनी डिसिप्लिन बैलेंस लाइफ गुजार सकते हैं, एजुकेशन प्रोफेशनल सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकते हैं, अपने प्रोफेशनल ग्रूमिंग कर सकते हैं आप इसके थ्रू, ठीक है। और वोकेशनल प्रोफेशनल लाइफ को भी आप मेंटेन कर सकते हैं। अगर इसके फंक्शंस की बात करें तो उसके बेसिक 3 फंक्शंस हैं, एडजस्टमेंट, ओरिएंटेशन एंड डेवलपमेंट। प्रिंसिपल्स की बात करें तो अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेज, guidance is related to every aspect of life, cooperative among persons, guidance is a continuous lifelong process, guidance for all, principle of elaboration, responsibility of teachers, parents, flexibility है, principles of evaluation है, guidance by trained person, principles of periodic appraisal, ठीक है। ये किन किन एस्पेक्ट्स पे हो सकती है, यानी कि आप अपने एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को आप देख सकते हैं, ऑल राउंड डेवलपमेंट देख सकते हैं, लाइफ के प्रिंसिपल है, फ्लेक्सिबिलिटी है, और इसके अलावा कोऑपरेटिव है, और आपकी ओवरऑल आपकी लाइफ लॉन्ग प्रोसेस को आप मेंटेन कर सकते हैं इसके थ्रू। टाइप्स की हम बात करें तो पर्सनल गाइडेंस है, सोशल गाइडेंस है, एजुकेशनल गाइडेंस है, वोकेशनल है, हेल्थ है, और एवोकेशनल गाइडेंस है। इसकी टाइप्स हैं। अगर हम इसकी टाइप्स और फॉर्म्स की बात करें तो सेंट्रलाइज होती हैं, डिसेंट्रलाइज होती हैं, और कम्बिनेशन होती है। सेंट्रलाइज में क्या होता है कि इसके अंदर इंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं, डिसेंट्रलाइज में आप उसको मज़ीद स्पेसिफाई करती है, और कम्बिनेशन में जो है वो मिक्सड अप्रोच आ जाती हैं। बेसिक कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन सेटअप में काउंसलिंग सेंटर है, काउंसलिंग कमेटी है, टूल्स ऑफ काउंसलिंग सर्विस है, रिक्वायरमेंट ऑफ काउंसलिंग सर्विस है, ठीक है। इसके मेंबर्स कौन, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, डीन, प्रिंसिपल, काउंसलिंग लेजन ऑफिसर है, डिप्टी चीफ, काउंसलिंग सेक्शन है, काउंसलिंग पर्सनल है, काउंसलर है, वोकेशनल गाइडेंस ऑफिसर है, टीचर हो, फैकल्टी मेंबर हो सकता है, डिपार्टमेंटल में स्पेशलिस्ट हो सकता है, हॉस्टल वार्डन, लाइब्रेरियन, स्टूडेंट, रिप्रेजेंटेटिव और पेरेंट्स, सब मेंबर्स जो काउंसलिंग में कमेटी में आ जाते हैं, ठीक है। होप सो यू कैन अंडरस्टैंड। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।